خاک ضلع وادی تیرہ میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 فوجی جوان شہید ہو گئے جبکہ 3 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق 6 نومبر کی رات سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر وادی تیرہ میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا جس میں قیادت کرنے والے 43 سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر نے جامع شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں نائب خوشدل خان، رفیق خان، لانس نائک عبد القادر نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے۔ میاں ولی میں پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گرد حملے میں استعمال کیے جانے والے غیر ملکی اسلحے سے متعلق تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق میاں والا حملے میں مارے جانے والے دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ ملا جو امریکی ساختہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں سے ملنے والے RPG 7 AK-74 M4 اسلحے میں اس حوالے سے شامل ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں اتفاق کیا گیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے سب مل کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق آصف علی زرداری نے وطن واپسی پر نواز شریف کو مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت دی اور جلد ملاقات کا امکان بھی ظاہر کیا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا وہیں سے شروع کریں گے اور پاکستان کو ایشین ٹائیگر ضرور بنائیں گے۔ نواز شریف سے پارٹی رہنما خواجہ آصف، احسن اقبال، اسحاق ڈار اور مریم اورنگزیب نے ملاقات کی جس میں ملکی صورتحال اور پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاری کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اس بار پاکستان کے عوام لاہور سے وزیر اعظم منتخب نہیں کریں گے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے ثابت ہو گیا کہ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے ثابت ہو گیا کہ عوام پیپلز پارٹی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اس وقت بلدیاتی انتخابات جیتتے نظر آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سب کو برابری کا موقع ملنا چاہیے۔ ہم رکاوٹ ڈالنے والے نہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو الیکشن میں ضرور آنا چاہیے۔ ہم کسی ایسے فعل میں شامل ہیں نہ اس کی حمایت کریں گے۔ سب کو انتخاب لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف 8 فروری کا الیکشن لڑ کر چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے نواز شریف کا استقبال کیا۔ اس روز سڑکوں پر جگہ ختم ہو گئی تھی۔ مخالفین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ قائد نون لیگ نے ہر بار پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹیں منجمد کر دی گئی جس کے باعث ووٹ کا اندراج یا اخراج اب نہیں ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹوں کو منجمد کرنے کے بعد آئندہ عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں کی تیاری پر کام جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں کو منجمد کر دیا ہے جس کے بعد اب ووٹرز کا اندراج یا اخراج نہیں ہوگا۔
पर इसराइली हमलों को पूरा महीना हो गया, जिसमें इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 10,000 के करीब पहुंच गई है। अमेरिका और इसराइल की हामी ताकतें जंगबंदी के मुखालिफ हैं, जबकि बाकी दुनिया तमाशाई का किरदार निभा रही है। गजा में न खाना, न पानी, न ईंधन, बिजली है और न ही हालात दिन से दिन बदतर होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद घंटों में हमले शुरू होने से अब तक की बदतरीन बमबारी के इत्तलात हैं और फजा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान ने इसराइली वजीर के फलस्तीनियों पर एटम बम हमले की धमकी को इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक फलस्तीनियों पर एटम बम के मुमकिना इस्तेमाल के इसराइली वजीर दिफा के बयान पर हमें तशवीश है। ये बयान फलस्तीनियों की नस्लकुशी और उनका वजूद मिटाने के अज़ाइम का इजहार है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि फलस्तीनी वजीर का बयान इलाकाई सलामती और अमन के लिए खतरा साबित हुआ है। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान दिल्ली के अरविंद जेटली स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच में पहली बार श्रीलंका के एंजलियो मैथ्यूज बगैर कोई गेंद खेले आउट हो गए। तारीख में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी बैटर को टाइम आउट होने पर मुखालिफ टीम की अपील पर आउट कर दिया गया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने बॉलीवुड में काम करने से मुतालिक सवाल पर इनकार कर दिया। शाहिद अफरीदी से सवाल किया कि क्या उन्हें कभी बॉलीवुड से किसी मूवी की ऑफर हुई। उसके जवाब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे 2 से 3 मरतबा फिल्म में काम करने के हवाले से पेशकश हुई है, जिसमें बॉलीवुड मूवीज भी शामिल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान को वही करना चाहिए जो वो कर सकता है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा का कोट शेयर कर दिया। परिणीति चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में एक कोट शेयर की, जिसमें दिली ख्वाहिशात को समझने से मुतालिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा का एक कौल तहरीर था। बॉलीवुड अदाकारा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा का ये कौल, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका दिल कहाँ है तो फिर ये देखें कि जब आपका दिमाग भटकता है तो वो कहाँ जाता है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया। स्टोरी मदाहों के दिलों को छू गई है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। गुलकार, मौसीकार और अदाकार अजान समी खान ने एक बार फिर एतराफ़ किया कि इस बात में कोई शक नहीं कि उन जैसे बच्चों को शोबिस इंडस्ट्री में जल्द और बेहतर मौके मिलते हैं। अजान समी खान मकबूल गुलकार अदनान समी खान अदाकार ज़ेबा बख्तियार के बेटे हैं और वो माजी में भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि वालिदैन के शोबिस में होने की वजह से उन्हें फ़ायदा मिला, उन्हें अच्छे और बेहतर मौके मिले। अजान समी खान ने वालदा के लिए गाना भी गाया जिसका उन्वान माँ था और वो उनके आने वाले एल्बम का हिस्सा है। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने एतराफ़ किया है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा जिनसी तौर पर हिरासा किया गया। जिनसी हिरासगी से मुतल्लिक सवाल पर हरीम शाह ने इंकशाफ किया कि मुझे ज़िंदगी में कई बार जिनसी तौर पर हिरासा किया गया, लेकिन इसके जवाब में मैंने उन लोगों का इतना नुकसान किया कि उन्हें अपने नुकसान का अंदाज़ा हो ही नहीं सका और उन्हें समझ भी नहीं आई कि ये लड़की कैसे आई और क्या करके चली गई।
बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने शो कॉफी विद करण में अपनी अहलिया दीपिका पादुकोण से तल्ख लहजे में बात करने पर माफी मांग ली, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दौरान शो दीपिका पादुकोण ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया कि वो रणवीर सिंह के साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात में थी। अदाकारा ने कहा था कि बेशक वो दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते में थी, लेकिन जहन में सिर्फ यही था कि उन्हें रणवीर सिंह के पास ही वापस जाना है, क्योंकि वो उनके दिल में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता हुआ, जिसमें इत्तफाक किया गया कि रियासत को बचाने के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने मौशी मुश्किलात और अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी भरपूर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत दी और जल्द मुलाकात का इम्कान भी जाहिर किया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता हुआ, जिसमें इत्तफाक किया गया कि रियासत को बचाने के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी पेश की है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स जरूर बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन आमद पर शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार और मरियम औरंगजेब ने भी मुलाकात की, जिसमें मुल्की सूरत हाल और पार्टी की सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने की भी हिदायत की और कहा कि तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स जरूर बनाएंगे। खबर शामिल करें खैबर पख्तूनख्वा से, जहां जिला वादी तीरा में दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए, जबकि 3 दहशत गर्द भी मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक 6 नवंबर की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर वादी तीरा में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसमें क़यादत करने वाले 43 साला लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर ने जामे शहादत नोश किया। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में नायक खुशदिल खान, रफीक खान, लांस नायक अब्दुल कादिर ने भी जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 3 दहशत गर्द हलाक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले गैर मुल्की असलहे से मुतालिक तफसीलात मंजरेआम पर आ गई हैं। जराये के मुताबिक मियांवाली हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा मिला जो अमरीकी साख्ता है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले गैर मुल्की असलहे से मुतल्लिक तफसीलात मंजरेआम पर आ गई हैं। सराय के मुताबिक मियांवाली हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा मिला जो अमरीकी साख्ता है।
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس بار پاکستان کے عوام لاہور سے وزیر اعظم منتخب نہیں کریں گے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے ثابت ہو گیا کہ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو نے گزری اسٹیڈیم میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات فروری کے الیکشن کا ٹریلر ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے ثابت ہو گیا کہ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اس وقت بلدیاتی انتخابات جیتے جب ہم حکومت میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ملک کو معاشی مسائل، غربت اور مہنگائی سے نجات دلانا ضروری ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہی غربت کے خاتمے اور روزگار کی فراہمی میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس بار پاکستان کے عوام لاہور سے وزیر اعظم منتخب نہیں کریں گے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے ثابت ہو گیا کہ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو نے اسٹیڈیم میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات فروری کے الیکشن کا ٹریلر ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے ثابت ہو گیا کہ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سب کو برابری کا موقع ملنا چاہیے۔ ہم رکاوٹ ڈالنے والے نہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو الیکشن میں ضرور آنا چاہیے۔ ہم کسی ایسے فعل میں شامل ہیں نہ ہی اس کی حمایت کریں گے۔ سب کو انتخاب لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہونا چاہیے اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سب کو برابری کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ ہم رکاوٹ ڈالنے والوں میں سے نہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو الیکشن میں ضرور آنا چاہیے۔ ہم کسی ایسے فعل میں شامل ہیں نہ ہی اس کی حمایت کریں گے۔ سب کو انتخاب لڑنے کا موقع ضرور دینا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہونا چاہیے۔ اور وہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف 8 فروری کا الیکشن لڑ کر چوتھی بار وزیر اعظم ضرور بنیں گے۔ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے نواز شریف کا فقید المثال استقبال کیا۔ اس روز سڑکوں پر جگہ ختم ہو گئی تھی۔ مخالفین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ قائد نون لیگ نے ہر بار پاکستان کے عوام کی خدمت کی، اب بھی عوام نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے۔ ہم نواز شریف کی قیادت میں الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہم پاکستان سے مہنگائی ختم کرنے، کسان کو سستی کھاد اور بجلی فراہم کرنے کے لیے ضرور تیار ہیں۔ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو الیکشن کے لیے تیار ہے، جس نے اپنا الیکشن سیل بنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹیں منجمد کر دی گئی ہیں، جس کے باعث ووٹ کا اندراج یا اخراج اب نہیں ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹوں کو منجمد کرنے کے بعد آئندہ عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں کی تیاری پر کام جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں کو منجمد کر دیا ہے، جس کے بعد اب ووٹرز کا اندراج یا اخراج نہیں ہوگا، بلکہ الیکشن کمیشن رواں ماہ کی 25 تاریخ تک ووٹر لسٹوں کو فائنل کر دے گا اور 25 نومبر تک ہی ووٹر لسٹوں کی اشاعت مکمل کر لی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹیں منجمد کر دی گئیں، جس کے باعث ووٹر کا اندراج یا اخراج اب نہیں ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹوں کو منجمد کرنے کے بعد آئندہ عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں کی تیاری پر کام جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں کو منجمد کر دیا ہے، جس کے بعد اب ووٹرز کا اندراج یا اخراج نہیں ہوگا، بلکہ الیکشن کمیشن رواں ماہ کی 25 تاریخ تک ووٹر لسٹوں کو فائنل کر دے گا اور 25 نومبر تک ہی ووٹر لسٹوں کی اشاعت مکمل کر لی جائے گی۔ آگے بڑھے اور خبر یہ ہے کہ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے احکامات پر عزیز آباد کی حدود میں گٹکا ماوا میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق ایس ایچ او عزیز آباد شاہد تاج اور ہیڈ محرر شہزاد علی گٹکا ماوا فیکٹری کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر
معطل ہو گئے ہیں۔ بھنگوریا گوٹ میں قائم 3 مختلف گٹکا ماوا فیکٹری پر کریک ڈاؤن ASP گلبرگ ڈویژن کی زیر نگرانی میں کیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ میں گٹکا ماوے میں ملوث ملزم کے خلاف کریک ڈاؤن۔ جناب SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل نے گزشتہ شب سابقہ SHO عزیز آباد سب انسپکٹر شاہد تاج اور ہیڈ مورر SI شہزاد علی کو گٹکا ماوا فیکٹری کے خلاف کارروائی نہ کرنا اور چشم پوشی کرنے پر معطل کر دیا تھا۔ بھنگوریا گوٹ میں قائم 3 مختلف گٹکا ماوا فیکٹری پر کریک ڈاؤن ASP گلبرگ ڈویژن کی نگرانی میں کیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران 3 ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت فرقان ول آدم علی، نعمان ول موسیٰ اور فاروق ول نور محمد کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے فیکٹری سے بھاری مقدار میں تیار گٹکا ماوا اور چھالیا سمیت ہیوی مشینری، اسلحہ اور ایک عدد کار بھی قبضے میں لے لی، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 314 بورے چھالیا وزنی 6280 کلو، 2764 پیکٹ تیار شدہ کیمیکل، 74 ڈرم اور 11 بورے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران اور بصرہ کے سرجن ہمارے ساتھ ہیں۔ حیدرآباد میں سینئر سرجن ڈاکٹر ارشد ابڑو کی پریس کانفرنس ہوئی۔ MS سول ہسپتال حیدرآباد نے کہا کہ ڈاکٹر احمد دیارہ، صالح خالق، ڈاکٹر صادق قاسم، ڈاکٹر ماجد عبدالستار بصرہ سے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلی بار غیر ملکی ڈاکٹرز آئے تاکہ یہاں ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ایران سے بھی سرجن آئیں گے جنہیں ارشد ابڑو ٹریننگ دیں گے۔ میں لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز کا پروفیسر آف سرجری ہوں۔ ہمارے پاس عراق کے شہر بصرہ سے ڈیلیگیشن آیا تھا، جنہوں نے یہاں پر ہماری سرجریز کو دیکھا۔ یہ ویڈیو اسسٹڈ سرجری تھی، ٹرانسینل سرجری اور لیپروسکوپک سرجری کی ٹریننگ تھی 3 روزہ۔ اس پہ ہم نے کمپلیٹ ہوئے 15 آپریشن کیے ہیں پیشنٹس کے، اور ان کو ہم نے تربیت دی ہے اس کے اوپر، جیسے یہ اپنے ملک جا کر وہاں یہ سرجری پرفارم کر سکیں۔ Sadiq Qasim, I come from Iraq, Basra, to get into the workshop in the Hyderabad in this teaching hospital about the advanced endorectal surgery. Use the vast new surgeon to management of the fistula and end. This university is a very, very, very good hospital for training, for expanded of the management of this disease. I am a consultant surgeon from Basra, Iraq, and we came before 2 days sharing experience with Dr. Rashad and about the workshop. What is recent in endorectal surgery? He showed us a lot of cases, and we share the experience about what is the most important information to gain in order to help our people in Pakistan and Iraq. میں لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز کا پروفیسر آف سرجری ہوں۔ ہمارے پاس عراق کے شہر بصرہ دوسری جانب BNF کی منشیات سمگلرز کے خلاف گوادر میں بڑی کارروائی کی گئی۔ منشیات کی بھاری مقدار مختلف جگہوں پر چھپا کر رکھی گئی تھی۔ دوران کارروائی مجموعی طور پر 1788 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی۔ منشیات افغانستان کی تیار کردہ ہیں۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ ANF کی منشیات سمگلرز کے خلاف گوادر میں بڑی کامیاب کارروائی ہوئی۔ منشیات کی بھاری مقدار مختلف جگہوں پر چھپا کر رکھی گئی تھی۔ دوران کارروائی مجموعی طور پر 1788 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی۔ منشیات افغانستان کی تیار کردہ ہیں۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ناظرین، اب کچھ بات الیکشن کی تو پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن کے لیے بھرپور تیار ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی لاہور چودھری ریاض کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ اپنا لوہا منوایا ہے، انہیں وزیر اعظم ضرور بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی عوام کی طاقت سے اقتدار حاصل کرے گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں ان کے ساتھ موجود اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر سے۔ جی حیدر، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟
इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। 8 फरवरी 2024 की तारीख दी गई है और सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी रियाज साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि पीपल्स पार्टी लाहौर में इलेक्शन के हवाले से किस तरह से तैयारियाँ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ही इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है और दिन रात मसरूफ़ है और गली कूचे में मोहल्ले में हर जगह पे जा रही है। और आज बाकायदा हमने एक मीटिंग रखी थी ताकि अपने कैंडिडेट्स को आगाह कर दिया जाए कि इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और कोई अपने घर ना बैठे, हर गली में मोहल्ले में जाए और एक एक वोटर के पास जाए, खुसूसन उन वोटरों के पास जाए जिनको ये पजारो पराडो और क्रूज़र वाले इग्नोर करते हैं और असल वोट डालते ही वो हैं। ये जो बड़े घरे वालों हैं 16 कनाल में, 8 कनाल में, 4 कनाल में, ये वोट डालने नहीं आते। और हमने हमारे सदर लाहौर असलम गिल साहब ने यही हदायत आज की है कि जाना है वोटरों के पास और उन वोटरों के पास जिनके पास कभी कोई नहीं गया और इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन विन करेंगे। चौधरी साहब, आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है 2024 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे? इंशाल्लाह ताला हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाएंगे क्योंकि वो इसके अहल भी हैं। आपने देखा होगा कि जब मुल्क इंतहाई इंटरनेशनल लेवल पर तन्हाई का शिकार था तो किसको कॉल किया गया, कौन लोग उसके पास गए कि भी आए आप वज़ीर ख़ारजा बने, पाकिस्तान को तन्हाई से निकालें। तो वो वाहिद शेर था जो गया दुनिया में और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और दुनिया ने सराहा कि वाकई ये एक कामयाब वज़ीर ख़ारजा है और इंशाअल्लाह ताला हम उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे और वो पाकिस्तान को तन्हाई से निकालेगा। जी, चौधरी रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया और बिलावल भुट्टो। नाज़रीन, खबर शामिल करें लाहौर से, जहां तजावुज़ात माफिया के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की हिदायत पर इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों में 183 मकामात से तजावुज़ात का खात्मा किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इन तजावुज़ात माफिया के खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, देखिए लाहौर में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जो है शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL की हदायत पर इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन में तेजी का सिलसिला जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर के मुताबिक शहर में कुल 183 मकामात से तजावुज़ात का खात्मा किया गया है, जबकि लाहौर में 15 से ज़ायद ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया और उसे मुतल्लिका स्टोर्स में भिजवा दिया गया है। तजावुज़ात पर 65 के खिलाफ जो है नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि खिलाफ वर्जी पर 57 के खिलाफ जो है वो चलान जारी किए गए हैं। दातागंज बख्श में 70, रावी में 10 और अल्लामा इकबाल टाउन में 23 तजावुज़ात खत्म की गई। अजीज भट्टी में 9, वागा में 10, शालीमार में 18 तजावुज़ात खत्म किए गए, जबकि गुलबर्ग जोन के वाले से आपको बताता चलूं, गुलबर्ग जोन में 8, समनाबाद में 10 और निश्तर जोन में 25 मकामात से तजावुज़ात का खात्मा किया गया है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि MCL अमला तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में मजीद तेजी लाए। तजावुज़ात खात्मा ऑपरेशन में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लाहौर की अहम शाहराहों को तजावुज़ात से पाक किया जाएगा। जी ठीक है जुनेद अशरफ, तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वहीं दूसरी जानिब लाहौर में इंसदादे स्मोक इकदामात में मजीद तेजी के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने खसूसी अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर ने महकमे माहौलियात को सरकारी प्रोजेक्ट्स पर पानी छिड़काव न होने पर चलान करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। लाहौर में इंसदादे स्मोक इकदामात में मजीद तेजी के लिए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने खसूसी अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर लाहौर ने महकमा माहौलियात को सरकारी प्रोजेक्ट्स पर पानी छिड़काव न होने पर चालान करने का हुक्म जारी किया। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की कि तमाम सरकारी एजेंसीज इमारती मलबा को महफूज तरीके से ठिकाने लगाएं, वरना मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि महमूद बूटी एरिया में 12 टीमें सनती यूनिट्स चेकिंग कर रही हैं। मजीद 128 सनती यूनिट्स ने अमीश
पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम फाल कर लिए हैं। लाहौर ता शेखुपुरा और ननकाना साहब मोटरवे पर स्क्वाड्स ने गश्त शुरू कर दी है। एक्साइज की 7 बाइक टीम्स और 7 जगहों पर जनरल होल्डअप के तहत धुआं देने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। महकमा माहौलियात जिस सनती यूनिट को सील करेगा उसको डी सील सिर्फ अदालत के हुक्म से किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का मजीद कहना था कि जो सनती यूनिट खिलाफ वर्जी पर सील होने पर खुद डी सील करेगा उसको मस्मार किया जाएगा। शहरी और स्टूडेंट्स स्मोक के बारे में इतला और शिकायत भेजें, 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटों में अजाला ना होने पर कमिश्नर लाहौर ऑफिस खुद अजाला करेगा। जिस इलाके में बगैर कवर रेत वाली ट्रालीज दाखिल होंगी ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट महकमा एरिया में 2 घंटे में पानी का छिड़काव करने का पाबंद होगा। किसी भी चिमनी से काला धुआं निकलने पर इजला के डीसी खुद जिम्मेदार होंगे। हर धुआं देने वाली गाड़ी बंद की जाएगी, फिटनेस हासिल करने के बाद ही छोड़ी जाएगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम डीसीज और अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, एडिशनल कमिश्नर हामिद मलिक, डीसी कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी, एमडी वासा गुफरान अहमद, एलडीए हेल्थ अफसरान, एलडब्ल्यूएमसी, पीएचए, पुलिस महकमा ज़राअत और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा जुनेर अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने ताज़ा दूध के खिलाफ किया जाने वाला सर्वे मुस्तरद कर दिया है। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज का सर्वे रद्द कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे साकिब भट्ट। डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के अहदेदारान का लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर की तरफ से ताज़ा दूध के खिलाफ किए जाने वाले सर्वे को मुस्तरद करते हैं। लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए बनाई गई यूनिवर्सिटी लाइफ स्टॉक दुश्मन और फार्मर दुश्मन निकली है, जबकि फार्मर दुश्मन कुव्वते इस नाम नहाद बिके हुए सर्वे के पीछे हैं। हम इसमें मुलविस बकाऊ प्रोफेसरों की भी भरपूर मजम्मत करते हैं। अहदेदारान का कहना था कि ये रिपोर्ट किसी सरकारी फोरम पर पेश करने की बजाय 5 स्टार होटल में मीडिया के सामने पेश करके यूनिवर्सिटी फार्मर दुश्मन कुव्वतों की आलाकारी बनी है। 11 शहरों से 1200 सैंपल्स की बुनियाद पर मुल्क भर के ताज़ा दूध को गैर मियारी करार नहीं दिया जा सकता। बिकी हुई सैंपलिंग और टेस्टों की कोई हैसियत नहीं। यूनिवर्सिटी ने अपनी हदूद से तजावुज किया है और बदनीति की बुनियाद सर्वे में मखसूस प्रोडक्ट को शामिल किया। चेयरमैन शहबाज रसूल वराइच और अहदेदारान का कहना था कि सोची समझी साजिश के तहत ताज़ा दूध के खिलाफ हम गरीब लोगों पर पैकेज दूध का जबरदस्ती बोझ डालने की साजिश है। जब ताज़ा दूध आसानी से दस्तियाब है तो आम पैकेज दूध की इजाफी कीमत क्यों अदा करे। अहदेदारान का कहना था कि फार्मर्स को तबाह करने की ये मुल्क दुश्मन पॉलिसी अब खुलकर सामने आ चुकी है। छोटे फार्मर को खत्म करके कॉर्पोरेट सेक्टर को जगह देने की कोशिश की कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। चेयरमैन और दीगर अहदेदारान का गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालबा करते हुए कहना था कि आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें इस बात का तयन किया जाए कि इस नाम नहाद सर्वे के पीछे कौन है और इसके लिए फंडिंग किसने की। चेयरमैन डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन पाकिस्तान चौधरी शहबाज रसूल और एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद खान भट्टी का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैं मोहम्मद खान बाबर भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट पंजाब DCFA पाकिस्तान। हम जो यहाँ पे अभी आए हैं, हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है, मैं एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपको मतवज्जो करता हूँ कि युवाज के एक उन्होंने प्रोग्राम किया है जो बिल्कुल ही हमें समझ नहीं आया। उन्होंने एक 61 पेजेस का एक अपना फाइंडिंग एक दी है खुले दूध के मतलब। उन्होंने कहा खुला दूध जो है वो जेली है। हम भी कहते हैं खुला दूध जेली है, लेकिन जो असली दूध है फिर वो कहाँ पे जाता है, हमें यही बता देना। इतना लाखों लीटर दूध प्रोड्यूस होता है और लाहौर के अंदर आता है, वो कहाँ पे जाता है। जी, हम लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हालिया युवास यूनिवर्सिटी की तरफ से एक खुले दूध पे सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान में बिकने वाला 92% तक दूध वो गैर मियारी है, सेहत के लिए मौजूद नहीं है। बीइंग ए फार्मर, बीइंग ए एसोसिएशन, हम युवास की इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये डेयरी फार्मर्स के दुश्मन मबनी पे ये एक रिपोर्ट है और हम जितना भी इसको कंडेम करें वो कम है। अगर पाकिस्तान में 92% तक दूध। खबर ये है कि वासा मशल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बौखलाहट का शिकार हो गए। करप्शन की खबरें शाया होने पर वासा के सीनियर अफसरान पर इल्जाम आयद कर दिया। वासा पब्लिक रिलेशन ऑफिस को भी गैर फाल करार दे दिया है। मशल यूनियन का सहाफियों के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा।
منظر عام پر آ گیا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ واسا مشل یونین کے جنرل سیکرٹری بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے کامران علی سے. جی کامران، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی، یہ واسا کے سینئر اکاؤنٹنٹ شاہد محمود کی انوکھی فرمائش سامنے آ گئی ہے. ایم ڈی واسا غفران احمد کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا ہے. خط کے متن میں واسا کے دفاتر میں صحافیوں پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور صرف من پسند صحافیوں کو دفاتر میں داخلے کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی ہے. خط میں واسا کے پی آر آفس کے غیر فعال ہونے کا ذکر بھی کیا گیا، جبکہ واسا کا پی آر سیکشن 10 کے قریب افراد پر مشتمل ہے. واسا انتظامیہ پی آر سیکشن کے افسران بعملہ کو لاکھوں روپے تنخواہ بھی دے رہی ہے. خط میں واسا کے افسران پر الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ افسران صحافیوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں، جبکہ یہ کام ہمیشہ یونین کے عہدیداران کرتے رہے ہیں. یہاں پر میں آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ واسا سی بی اے کے الیکشن جیتنے والی یونین تاحال ملازمین سے کیے گئے وعدے پورے نہ کر سکی، جبکہ سرکاری دفاتر میں سالگرہ کی تقریب اور کلورین چوری کے متعدد واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں. تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن میں فتح حاصل کرنے والی یونین صحافیوں سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ ان پر پابندی کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. شاہد محمود کے اس خط کے سامنے آنے کے بعد صحافی برادری میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے. سینئر جرنلسٹ نے شاہد محمود کو ہیڈ آفس میں دھوپ سیکنے کی بجائے اچرا شاہ جمال واسا آفس میں ڈیوٹی کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے. جی ٹھیک ہے، کامران علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ نواز شریف نے مساق جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل اور دیگر کی پریس کانفرنس ہوئی. میاں والی میں دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی. کہا پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکن فورسز اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ نواز شریف نے مساق جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں متحد اور منظم ہے. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ذہین، پڑھے لکھے اور ان کے پاس ذوالفقار بھٹو شہید اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی ہے. اور انہوں نے جس طرح وزیر خارجہ بن کے تمام خارجہ امور کو جس طرح انہوں نے نبھایا اور بین الاقوامی سطح پر انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی، ہم اپنے چیئرمین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. میرے دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے. ہماری قیادت نے شہادتیں دی ہیں. ہماری جماعت نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو دیا ہے، ملک سے کچھ لیا نہیں. اگر آج دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر اگر فوج پاکستان اور عوام کھڑی ہے تو وہ ذوالفقار بھٹو شہید کا دیا ہوا ایٹم بم ہے. اگر ہم رات کو سکون سے سرحدیں محفوظ ہیں، پوری قوم اطمینان سے سوتی ہے، تو ایٹم بم کے علاوہ شہید بے نظیر بھٹو کا دیا ہوا میزائل ٹیکنالوجی ہے. میاں نواز شریف صاحب، آپ نے مساق جمہوریت کا جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے صحابہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس کی دھجیاں اڑا دیا. آپ نے اپنے مفاد کے، ذاتی مفاد کے لیے آپ پاکستان میں آ کے چاہتے ہیں کہ الیکشن جیت جائیں. آپ کو پتہ نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ذہین ہیں. پاکستان کے عوام وہ آپ کو ایسے نہیں جیتنے دیں گے. اگر دھاندلی کی گئی، اگر پہلی طرح کی طرح الیکشن جیتنے کے اناؤنس کیے گئے تو میاں نواز شریف لوگوں کی انگلی آپ کی طرف اٹھے گی. لوگ آپ کو نہیں مانیں گے، یہ الیکشن کو نہیں مانیں گے، اور پھر آپ کو لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ گو نواز شریف، گو نواز شریف، گو نواز شریف. یہ ہوگی. اور اگر آپ چاہتے ہیں سب کہ ملک کے اندر استحکام رہے، ملک کے اندر معیشت بہتر ہو، ملک کے اندر جمہوریت چلے،
खबर ये है कि माँ और बेटे का रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत और लासवाल होता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक ही रोज में माँ और बेटे की 3 किताबों की रोनुमाई की तकरीब अलहमरा हाल में मुनक्किद हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ सार्जियो बोसीना से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नसार प्रोफेसर डॉक्टर शहाब यार खान और उनकी वालदा सबिया नबूवत की 3 किताबों की तकरीब में सुहेल उमर, सैयद अफाक हुसैन, सैयद जाफर अब्बासी समेत खवातीन और दीगर हजरात ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली फारूक से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास? जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ प्लाक अलहमरा में, जहाँ पे 2 मुसन्निफिन हैं, एक बेटा और एक वालदा। उन्होंने बुक्स लिखी हैं और उनसे बात करते हैं। ये शहाब यार खान साहब हैं जो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार कैसे? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए आप? यार मैं बोस्निया हर्ज़ेगोविना में रहता हूँ और मेरी वालदा जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो मैंने ये 2 किताबों की वहाँ तश्कील की है। वैसे तो काफ़ी किताबें हमारी, लेकिन ये किताबें मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत ख़ास हैं, हिंदुस्तान के हवाले से भी ख़ास हैं, क्योंकि इसमें हमारी तहज़ीब का जिक्र है कि कैसे शेक्सपियर को हमने अपने माशरे में कबूल किया है, और ये जो है तहज़ीब का एक सफ़र है, कैसे हम कुछ देते हैं, कैसे किसी से हम कुछ लेते हैं। तो इन किताबों में इन चीज़ों का तफसीली जिक्र किया गया है। ये बोस्निया में पब्लिश हुई है लाहौर? नहीं, ये हुई तो बोस्निया में पब्लिश है, लेकिन ये अफाक हुसैन शाह साहब का जो कारवां है उसने हमें मदऊ किया है, मंसूर साबिर साहब ने हमें मदऊ किया है कि यहाँ आएँ, इन किताबों की रूनुमाई हो, ताकि पाकिस्तान में भी जो शेक्सपियर के हवाले से बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, उसमें भी, उस सकूत में भी कोई थोड़ा सा इर्ताश हो और लोगों के इल्म में आए कि असल में शेक्सपियर हमारा ही एक मुसन्निफ है जिसने हमारे ही हवाले से बातें की हैं। यादों में सफ़र, ये दूसरी बुक है, इसके बारे में बताइएगा। सबिया नबूवत साहबा की है जो आपकी वालदा है। जी, मेरी वालदा की किताब उनकी पूरी उम्र की जो सवाने है उसकी एक सरगुज़श्त है। इस किताब में हर उस खातून के बारे में कुछ न कुछ है जिसके अंदर सलाहियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन माशरे ने उसको आगे जाने का मौका नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ मेरी वालदा ने जो किताबें, कहानियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म का मज़ामीन लिखे हैं, वो एक तरह का जिहाद है इस माशरे में। इस अहम तरीन मौके पर, जबकि एक माँ और बेटा अपनी किताब पेश कर रहे हैं, पहली मरतबा इस मुल्क में, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ, और शायद मेरी माँ भी खुश होंगी कि इस वक्त उनका बेटा भी उनके बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हमारी किताबें जो हैं वो लोगों तक पहुँचें, और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ लोगों को मिले जिससे ज़िंदगी में कुछ सहूलत आए। हम चाहते हैं कि माशरा तरक्की करे इंशाअल्लाह। एक लास्ट क्वेश्चन ये कि मतलब किताब से जो दूरी है आजकल के दौर में, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे नई नस्ल को? यार, मैं तो समझता हूँ कि किताब से दूरी हमारे माशरे का असल अलमिया है। ये इतना बड़ा सानिया है कि अगर खुदा के लिए मैं लोगों से कहता हूं कि अपने बच्चों को किताबें दें पढ़ने के लिए। मेरी माँ की किताबें बहुत अच्छी हैं, बच्चों के हवाले से और बेशुमार किताबें लिखी जा रही हैं रोज़ाना इसी हवाले से। अपने बच्चों को खुदा के वास्ते किताबों से दोबारा वाबस्ता करें। इससे मुमकिन है कि तहज़ीब का जो ये एक डगमगाता हुआ सा एक जो है ना सफ़ीना, मुमकिन है कि इसमें कोई ठहराव आ जाए, वरना तो इम्कान ही कोई नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनी शहाब यार खान की। उन्होंने वाज़ह किया है कि जी ये किताब से दूरी एक अलमिया है, और नई बुक्स आना, नए मुसन्निफिन की बुक्स आना, ये आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेस्को के कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद अली सादिक की ज़ेर सदारत लेस्को ERP कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर और लेस्को की आला मैनेजमेंट की भरपूर शिरकत हुई। इजलास के गराज व मकासद की तफसीलात भी है, इस हवाले से आपको बताएंगे कि लेस्को के कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद अली सादिक की ज़ेर सदारत लेस्को ERP कमेटी का इजलास हुआ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर और लेस्को के आला मैनेजमेंट की भरपूर शिरकत हुई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी से। जी साजिद, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी कोहिनूर, आज कन्वीनर लेस्को बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद अली सादिक की जेर सदारत लेस्को ERP कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर, उनके अलावा डायरेक्टर HR मोहम्मद नुमान, फूड डायरेक्टर एडवांस जमीरुल हसन लाक्षी, चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन सरवर मुगल, DG टेक्निकल आमिर यासीन, चीफ इंजीनियर PMU ताहिर मेव, DG मिराड अल्ताफ कादिर, DG
आई जी नदीम ताहिर और डिप्टी मैनेजर एडमिन सलमान हैदर ने शिरकत की। इजलास की अहम बात यह थी कि कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि ERP सिस्टम को 30 नवंबर तक 2023 तक ऑपरेशनल किया जाए। ERP सिस्टम की वजह से काम पेपरलेस और स्पीडी मुमकिन होगा। लेस्को के HR, मटीरियल मैनेजमेंट, O&M और CFO के डाटा को ERP पर लाए जाने से कम वक्त में ज्यादा काम, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी में आसानी होगी और सार्फिन और मुलाजमीन के जो काम हैं वो बर वक्त वहाँ दस्तयाब होंगे। जी। सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की लोधरा में अहम मुलाकातें हुई। मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी भी इस मौका पर मौजूद थे। मजीद तफसीलात के मुताबिक जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से साबिक MP और पार्लिमानी सेक्रेटरी नसीर खान बलोच ने मुलाकात की। पार्टी कायदीन से इरशाद अब्बास घल्लू, सैयद रसा शाह गिलानी, राना अरसलान भी इस मौका पर मिले। मलिक शाहनवाज भुट्टा, नदीम खान घल्लू, चांद खान घल्लू भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में लोधरा समेत जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, सऊदी अरब की इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर अहमद बिन सालम अल आमरी की वफाकी वज़ीर बराए तालीम मदद अली सिंधी से मुलाकात हुई। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहकीक करने के लिए यूनिवर्सिटी की सतह पर असासा के तबादले शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मदद अली सिंधी ने इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक तारीखी और पुरवकार इदारा है। रियास के इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी के सदर HE डॉक्टर अहमद बिन सालम अल आमरी ने कहा कि हमने पाकिस्तानी तलबा को 700 वज़ाइफ की पेशकश की है और हम इस तादाद की पाकिस्तान की वज़ारत तालीम की ख्वाहिश के मुताबिक बढ़ाने का इरादा रखते हैं। वज़ीर तालीम ने मदारिस के मजहबी रहनुमाओं को तरबियत देने की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमें अपने मजहबी रहनुमाओं को रोशनास कराने की ज़रूरत है और मुमलिका सऊदी अरब पाकिस्तान में मदारिस के उलमा को तरबियत देकर मदद कर सकती है। मदद ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अरबी जुबान के कोर्सेज बनाने की जरूरत पर भी रोशनी डाली। पिम्स अस्पताल में FMTI नर्सेस का 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज है। सर्विसेज का बाइकआउट, एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी धरना भी जारी किया। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर एहतजाज का मरकज बन गया है। FMTI नर्सेस ने 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से सर्विसेज का बाइकआउट करके एडमिन ब्लॉक के सामने भरपूर एहतजाज किया और धरना भी दिया है। इस मौका पर नर्सेज रहनुमाओं गुलजार अहमद बलोच, नूर रहमान, रमजान बंगे, शबिया अल हसन, वलीउल्लाह, हमाद इकरा, मकसूमा और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमने 3 माह पहले भी 10 रोज तक एहतजाज किया था। हमसे वादे वईद किए गए मगर कोई संजीदा और अमली इकदाम नहीं किया गया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें और अब कुछ बात जंगी सूरत हाल की। तो गजा पर इसराइली हमलों को पूरा महीना गुजर गया जिसमें इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिका और इसराइल की हामी ताकतें जंग बंदी की मुखालिफ हैं जबकि बाकी दुनिया तमाशाई का किरदार निभा रही है। गजा में न खाना, न पानी, ईंधन, न बिजली, हालात हर दिन पहले से बदतर होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद घंटों में हमले शुरू होने से अब तक की बदतरीन बमबारी की इतलात मौसूल हुई हैं। वहीं दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुपों समेत 18 आलमी तंजीमों ने फलस्तीन में पूरी सीज फायर का मुतालबा कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और उसके अलावा दीगर इंसानी हकूक़ की 18 आलमी तंजीमों के सरबराहान ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें इंसानी बुनियादों पर फलस्तीन और इसराइल के दरमियान फौरी सीज फायर का मुतालबा किया गया है। इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया पर 18 तंजीमों के सरबराहान ने दस्तखत किए जिसमें कहा गया कि बहुत हो गया, अब उसे हर सूरत रुकना चाहिए।
पाकिस्तान ने इसराइली वजीर के फलस्तीनियों पर एटम बम हमले की धमकी को इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक फलस्तीनियों पर एटम बम के मुमकिन इस्तेमाल के इसराइली वजीर दिफा के बयान पर हमें तशवीश है। ये बयान फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और उनका वजूद मिटाने के अज़ाइम का इजहार है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि फलस्तीनी वजीर का बयान इलाकाई सलामती और अमन के लिए पुरखतरा है। दीगर खबरें शामिल करें खेल के मैदान से तो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान दिल्ली के अरविंद जेटली स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच में पहली बार श्रीलंका के एंजलियो मैथ्यूज बगैर कोई गेंद खेले आउट हो गए। तारीख में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी बैटर को टाइम आउट होने पर मुखालिफ टीम की अपील पर आउट दिया गया। एंजलियो मैथ्यूज टूटा हुआ हेलमेट लेकर मैदान में आ गए थे, जिसके बाद लिंकन क्रिकेटर ने मैच में फील्ड एम्पायर को कायल करने की भरपूर कोशिश की, मगर उन्होंने इजाजत नहीं दी। बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन समेत खिलाड़ियों की जानिब से टाइम आउट का कहकर आउट करने की अपील की। एम्पायर ने एंजलियो मैथ्यूज को टाइम आउट की बुनियाद पर आउट करार दे दिया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने बॉलीवुड में काम करने से मुतालिक सवाल पर इनकार कर दिया। शाहिद अफरीदी से सवाल किया कि क्या उन्हें कभी बॉलीवुड से किसी मूवी की ऑफर हुई। उसके जवाब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे 2 से 3 मरतबा फिल्म में काम करने के हवाले से पेशकश हुई है, जिसमें बॉलीवुड मूवीज भी शामिल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान को वही करना चाहिए जो वो कर सकता है। और अब कुछ बात शोबिस की दुनिया की तो बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का कोट शेयर कर दिया। परिणीति चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में एक पोस्ट शेयर की, जिसमें दिली ख्वाहिशात को समझने से मुतालिक हजरत अली का एक कौल तहरीर था। बॉलीवुड अदाकारा ने हजरत अली का ये कौल, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका दिल कहाँ है तो फिर ये देखें कि जब आपका दिमाग भटकता है तो वो कहाँ जाता है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया। स्टोरी मद्दाहों के दिलों को छू गई और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। नाज़रीन, गुलकार, मौसीकार और अदाकार अज़ान समी खान ने एक बार फिर एतराफ़ किया है कि इस बात में कोई शक नहीं कि उन जैसे बच्चों को शोबिस इंडस्ट्री में जल्द और बेहतर मौके मिलते हैं। अज़ान समी खान मकबूल गुलकार अदनान समी खान और अदाकार सेबा बख्तियार के बेटे हैं और वो माजी में भी उस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि वालिदैन के शोबिस में होने की वजह से उन्हें फायदा मिला, उन्हें अच्छे और बेहतर मौके जल्द मिल गए। अज़ान समी खान ने वालदा के लिए एक गाना भी गाया जिसका उन्वान माँ था और वो उनके लिए आने वाले एल्बम का हिस्सा है। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने शो कॉफी विद करण में अपनी अहलिया दीपिका पादुकोण से तल्ख लहजे में बात करने पर माफी मांग ली है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दौरान शो दीपिका पादुकोण ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया था कि वो रणवीर सिंह के साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात में थी। अदाकारा ने कहा था कि बेशक वो दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते में थी, लेकिन ज़हन में सिर्फ यही था कि उन्हें रणवीर सिंह के पास ही वापस जाना है, क्योंकि वो उनके दिल में मौजूद थे। नाज़रीन, खबर यह है कि मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने एतराफ़ किया है कि उन्हें अपनी जिंदगी में कई मरतबा जिनसी तौर पर हिरासा किया गया। जिनसी हिरासगी से मुतालिक सवाल पर हरीम शाह ने इंकशाफ किया कि मुझे जिंदगी में कई बार जिनसी तौर पर हिरासा किया गया, लेकिन उसके जवाब में मैंने उन लोगों का इतना नुकसान किया कि उन्हें अपने नुकसान का अंदाजा ही ना हो सका और उन्हें समझ ही नहीं आई कि ये लड़की कैसे आई और क्या करके चली गई। पाकिस्तानी अदाकारा उशना शाह का कहना है कि पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम में मजहब का अंसर खासा नुमाया है, जबकि एहसन खान की राय के मुताबिक मौजूदा टीम एक बहुत अच्छी टीम है। उशना शाह ने कहा कि सच तो यह है कि मैंने कभी टीम को उस गहरी निगाह से नहीं देखा। मेरी परवरिश कनाडा में हुई, मैंने लेजेंड्स क्रिकेटर्स को खेलते हुए नहीं देखा। तामिल फिल्मों की खूबरू अदाकारा रश्मिका मंदाना को उनकी गैर अखलाकी डीप फेक वीडियो वायरल होने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। रश्मिका मंदाना ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी किए गए अपने बयान में कहा कि मुझे अपनी गैर अखलाकी फेक वीडियो के बारे में बात करने पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है।
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ تامل فلموں کی خوبرو اداکارہ رشمیکا مندانا کو ان کی غیر اخلاقی فیک ویڈیو وائرل ہونے پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ رشمیکا مندانا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے اپنی غیر اخلاقی فیک ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ بالی ووڈ کی سدا بہار فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کا جادو آج بھی نہ صرف ماضی کے لوگوں بلکہ حالیہ نوجوان نسل پر بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ وہ فلم ہے جسے آج بھی اتنی شدت اور جوش کے ساتھ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس فلم کو 5 نومبر 1999 میں ریلیز کیا گیا تھا، جس سے اب 24 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ فلم 1999 اور 2000 کی سپر ڈوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارت میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 48ویں میچ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے کہ بھارت میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے 38ویں میچ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ بنگلہ دیش کی کپتان شکیب الحسن نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کی پوری ٹیم آخری اوورز میں 279 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ بھارت میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے 48ویں میچ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔